So we will continue our previous lecture that was regarding the membrane potential and action potential. Same topic will be continued. This is its last part, means today that chapter will be finished inshallah. So again we will revise some our previous topic के पिछली दफ़ा जो आपको समझाया था कि membrane potential and action potential why this is important, क्यों हम उसको study करते हैं, what is the purpose of understanding that potential. We have said कि some important tissue of human body, in that most importantly our skeletal muscle and nerves, means neurons, these are called as ke these tissue before their function they should be activated and some important current should be generated in that for their function. That current was called as action potential. We have discussed that is generated in some phases. That is again same ke we have discussed ke two type of tissue in human body, skeletal muscle and nerve. These were known as excitable tissue. For their activation we need हमें ज़रूरत थी for generation of their function, the generation of electrical current, that was known as action potential. और action potential in tissues के अंदर generate हो रहा था किसी factor की वजह से, किसी वजह से, that was known as the stimuli for generation of the action potential. वो stimuli that may be electrical हो सकता है, chemical हो सकता है, mechanical हो सकता है, ठीक है जी. So that we have discussed earlier. One thing के जो important होना है, चलें तो अदर थिंग जो रिपीट करना इम्पोर्टेंट था, in that most of the students confuse sometimes when they read from the book, that is Nernst potential. Now students are asking कि sir still we are 100 participants, तो today inshallah that issue will be solved. आज जैसे IT वाले आएंगे तो सॉफ्टवेयर हैव बीन परचेज, आज उसकी एक्टिवेशन प्रोसेस में आज का दिन जस्ट लगेगा मेरे ख्याल. तो इंशाल्लाह कल से आपकी जो भी क्लासेस होंगी दैट विल बी विद फुल पार्टिसिपेंट. तो डोंट वरी अबाउट दैट. अभी जो स्टूडेंट कनेक्ट हैं, ये वाला लेक्चर वी विल give that also on the YouTube, so the student which are unable to connect they can see that. तो आप उसमें परेशान ना हो. तो इंशाल्लाह tomorrow that issue will be solved. So the thing के जो next thing that was typical to understand Nernst potential, इसकी typical definition है, तो हमने समझा कि इसको repeat किया जाए तो बेहतर है. That is basically see from the picture के अगर किसी आयन की कंसंट्रेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सपोज करें ये एक सेल मेम्ब्रेन है सेल की जिसमें पोटेशियम दिखाया गया है. पोटेशियम अंदर और बाहर कंसंट्रेशन का फर्क है. अंदर पोटेशियम की मॉलिक्यूल दीज आर 6 इन नंबर, आउटसाइड दीज आर 3 इन नंबर. सो क्या है कि पोटेशियम का पोटेशियम क्या होगा कि there is concentration difference of potassium. Potassium will try to move from higher concentration towards lower concentration, वो try करेगा move करने की. लेकिन एक पॉइंट आएगा कि पोटेशियम के कुछ मॉलिक्यूल जब बाहर जाएंगे देयर विल बी डिफरेंस ऑफ चार्जेस. अंदर पोटेशियम के बाहर जाने की वजह से नेगेटिव चार्जेस विल बी जनरेटेड. वो नेगेटिव चार्जेस फिर पोटेशियम को अट्रैक्ट करेंगे. दैट अट्रैक्शन इज डिपेंड solely due to
change of charges, that is known as electrical driving force written in that picture. और ये बेसिकली क्या होता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। तो लिखा है कि द पॉइंट वेयर केमिकल ग्रेडियंट इज अपोज्ड बाय इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट उसको अपोज कर देता है और वो चीज क्या हो जाती है, आपकी स्टॉप हो जाती है, दैट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ द नर्नेस पोटेंशियल फॉर पोटेशियम। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो पॉइंट जहां पर पोटेशियम का इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट क्या करे कि पोटेशियम का इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट पोटेशियम के electrical gradient of potassium, what it do कि it oppose the chemical gradient and further movement of potassium is stop, that is known as Nernst potential। वो potential जिस पे potassium की further movement towards concentration gradient रुक जाए due to electrical gradient is known as Nernst potential। This Nernst potential is not only for potassium, that is also for the other ions like sodium, chlorine, other things। Now this is main important determinant which determines the resting membrane potential and also have a role in these movement of charges। ठीक है, so that was our repetition। This same our repetition we have discussed कि action potential क्या है, ये वो current है due to which the muscle will contract, due to which basically the nerve will do its function। so we have discussed कि that action potential basically have different phases। इसका क्या था, एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था कि जब मेम्ब्रेन रेस्ट पे था, सेल रेस्ट पे था, दैट सेल वाज नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी। सपोज करें मसल बिल्कुल आप रेस्ट के अंदर है, स्केलेटल मसल मूव नहीं कर रहा, तो वहां पर जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगी वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -90। फिर ये लिखा हुआ है थ्रेशोल्ड लेवल, आगे वी विल डिस्कस दैट कि क्या है कि एक लेवल रीच होगी स्टिमुलाई की वजह से थ्रेशोल्ड, उस लेवल पे क्या हो जाएगा कि मेम्ब्रेन फिर डीपोलराइज हो जाएगी। इस मेम्ब्रेन में देखिए -90 से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी नेगेटिव चार्जेस कम हो रहे हैं, जीरो की तरफ पॉजिटिविटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, दैट इज नोन एज डीपोलराइजेशन। मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी और ये जो पीक है ये बेसिकली ओवरशूट है पीक एक्शन पोटेंशियल का। एट दैट लेवल मसल विल डू इट्स फंक्शन, यानी इसी पीक पे मसल की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाए। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है इस लेवल पे, देन रिपोलराइजेशन आल्सो स्टार्ट्स। Now you see depolarization due to what channel? Sodium। Repolarization is due to what channel? It's closure of the sodium, opening of potassium। और ये कौन से चैनल होते हैं डिटेल में आगे पढ़ेंगे इसमें, आज यही लेक्चर। तो then again membrane come to its resting level। अब ये हाइपरपोलराइजेशन एक दफा समझ लें, सुन लें। यहाँ देखें कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 है, लेकिन इसके नीचे देखें ये लाइन जा रही है। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि व्हेन सेल इन रिपोलराइजेशन फेज its membrane potential may go further beyond the resting membrane potential। देखिए यहाँ -90 है, तो अगर इस लेवल को हम कंपेयर करेंगे तो ये समझ लें कि सपोज -100 तक गया, हो सकता है रेस्टिंग वाला माइनस से मजीद माइनस जाए, दैट इज नोन एज हाइपर पोलराइजेशन। कभी इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपको, तो जहन में हाइपर पोलराइजेशन पिक्चर में ही नजर आ रहा है। When membrane potential in repolarization goes further beyond more negative than resting potential, that is known as hyperpolarization। इसमें क्या लिखा है, क्यों हो रहा है कि पोटेशियम चैनल अगर यहाँ सारे बंद हो जाते, क्लोज हो जाते, ये यहाँ पे लाइन रहती लेकिन यहाँ कुछ ओपन रह गए जिसकी वजह से नीचे चला गया, तो दैट इज नोन एज के ये क्या है बेसिकली, ये इसका hyperpolarization phase है। Now today's lecture here, this is again same diagram के in resting membrane potassium sodium channel, ये main जो action potential के responsible channel होते हैं, these channels are known as voltage gated sodium channels। ये most important, ये क्या होते हैं, voltage gated sodium channel होते हैं। तो और जो है रिपोलराइजेशन के लिए यहाँ कौन से चैनल होते हैं, देखिए जो -30 से
+35 से वापस -90 तक लाते हैं। दीज आर आल्सो वोल्टेज गेटेड चैनल, बट वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। वोल्टेज गेटेड किस लिए कह रहे हैं कि एक खास वोल्टेज पे खुलेंगे, एक खास वोल्टेज पे बंद होंगे। दे आर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। सोडियम का खुलना, पोटेशियम का खुलना, पोटेशियम का बंद होना, सोडियम का बंद होना, दैट डिपेंड्स अपॉन अ स्पेसिफिक वोल्टेज। किस पे डिपेंड करता है? एक स्पेसिफिक वोल्टेज पे डिपेंड करता है। इस वजह से इनको कहते हैं कि वोल्टेज गेटेड चैनल है। तो इफ द क्वेश्चन केम, अगर कोई क्वेश्चन आता है कि द एक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू, तो यू विल से, आप कहेंगे उसमें कि क्या है वो, दैट इज बेसिकली वोल्टेज गेटेड चैनल्स। और डिपोलराइजेशन में सोडियम चैनल, रिपोलराइजेशन में पोटेशियम चैनल। ठीक है, दिस वाज आवर रिपीटेशन for understanding this is important. Now हम today we will study के what is the mechanism responsible for excitation। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। उसके लिए समझना है थ्रेशोल्ड, आपका लिखा हुआ थ्रेशोल्ड फॉर इनिशिएशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड को आप इस तरह समझें कि एक खास लेवल है, जब थ्रेशोल्ड रीच हो जाएगा तो फिर एक्शन पोटेंशियल को कोई नहीं रोक सकता। ये बात ज़हन में रखें कि when due to any stimuli, किसी भी स्टिमुलाई की वजह से जब थ्रेशोल्ड तक हम पहुंच जाएंगे तो एक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। Now see that what is written in that, an action potential will not occur until the initial rise in the membrane potential is great enough to create the positive feedback. Recall your memory ki we have discussed ke there are feedback system in human body. One is known as positive feedback. What was that? Ke when one change was occurring, further that was going on like the clotting system, contraction of labor. We also discussed the generation of action potential. ये फर्स्ट वाले हमारे जो लेक्चर थे उनमें था। इसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। तो एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन में भी देयर इज रोल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। A sudden rise in membrane potential of 15 to 30 millivolt is usually required। ये आप समझें 15 to 30 मिलीवोल्ट कितना, यानी -90 से ऊपर की तरफ, -90 से माइनस इतना कम हो जाएगा जब, तो वो थ्रेशोल्ड होगा। ये विल गो बैक ताकि आप समझें। यहाँ देखिए -90 से ये देखें थ्रेशोल्ड, यहाँ तक कितना डिफरेंस है, -90 से -65, ऑलमोस्ट तकरीबन 10 15 25 टू 30। तो ये 65 तक जब पहुंचेगा थ्रेशोल्ड इसको कहते हैं। यानी ये इतने वोल्टेज का डिफरेंस है, लेकिन हम नेगेटिव से कम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। वी आर सेइंग कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक, तो वो थ्रेशोल्ड है, वहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। Therefore a sudden increase in membrane potential, इसीलिए लफ्ज लिखा इंक्रीज, क्योंकि हम नेगेटिव से कम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं ऊपर। तो मिलीवोल्ट अप टू अबाउट -65 मिलीवोल्ट usually cause the explosive development of action potential। यानी इस लेवल पे अब एक्शन पोटेंशियल को कोई नहीं रोक सकता। This level of -65 millivolt is said to be threshold for stimulation। थ्रेशोल्ड को आप डेली लाइफ में भी समझ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई दोस्त है आपस में या अजीज रिश्तेदार हैं, कभी कभी क्या होता है व्हेन दीज आर टॉकिंग, तो एक को जब तंग कर दें तो वो सुनता 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 देन ए लेवल केम, एक लेवल आता है, वो कहता है बस मेरी बस हो गई, अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। यानी एट दैट लेवल उसका थ्रेशोल्ड जो है, बर्दाश्त का थ्रेशोल्ड, वो खत्म हो गया। अब वो अपना रिस्पांस दिखाएगा। तो सेम वे में इसका थ्रेशोल्ड है एक नर्व का, मसल का, वो जब रीच हो जाएगा तो वो क्या करेगी मसल और नर्व, दैट विल जनरेट एक्शन पोटेंशियल, सिंपल। तो इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड रीच होगा क्यों? किसी स्टिमुलाई की वजह से, समझ रहे हैं? या और इसको आप इस तरह समझें कि सपोज करें आपने आंखें बंद की हैं, आपका हाथ पड़ा हुआ साइड पे, कोई पिन लेता है, बिल्कुल स्लो 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 पिन लाता है, आपके हाथ के करीब अटैच करता है, सपोज करते हैं आप सोए हुए, ठीक है। तो वो पिन जब थोड़ी सी आपको लगती है, पहले आपको फील नहीं होता, वो पिन जब आपके जिस्म में चुभना स्टार्ट करती है तो तब एक लेवल आएगा, फौरन आप हटाते हैं। इसका क्या मतलब? वो थ्रेशोल्ड था, उसने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, वो जो पेन के सिग्नल थे दैट रीच टू योर ब्रेन, वो आपके ब्रेन में चले, आपने उस चीज को फील किया, दैट इज नोन एज, क्या है वो, उसका थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड जब रीच होगा उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो ये बात कर रहा है, दिस इज फ्रॉम योर बुक, दीज लाइंस।
Then further in detail it is saying the initial rise in membrane potential from minus 90 millivolt towards the zero level will cause many voltage gated sodium channel open. अब देखें वही voltage gated channels की बात आ रहा है, वो ओपन हो जाएंगे. सोडियम क्या हो जाएगा, जब ये ओपन होंगे सोडियम बाहर से अंदर जाएंगे सेल के अंदर. This allow rapid inflow of sodium ion which causes a further rise in membrane potential. Further rise mean positive direction में membrane potential change होगी, thus opening still more voltage gated sodium channel and allowing more entry of sodium ion to interior of fiber. फाइबर का मतलब नर्व के फाइबर है यानी न्यूरॉन है. दिस प्रोसेस इज ए पॉजिटिव फीडबैक साइकिल. अब ये पॉजिटिव फीडबैक क्यों है, देखें पीछे क्या लिखा है कि इट इज ओपनिंग स्टिल मोर एंड मोर चैनल्स. ठीक है जी. 10 विद इन अनदर फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड. ये जो भी प्रोसेस हो रहा है मसल का नर्व का, तो ये मिली सेकेंड के अंदर हो रहा है. सेकेंड के भी मिलियंथ पार्ट में, थाउजेंड्स पार्ट में, इतनी जल्दी हो रहे हैं. Then within another fraction of millisecond, the rising membrane potential causes closure of sodium channel. अब क्या हो रहा है, ये कह रहे हैं कि जब एक्शन पोटेंशियल पीक पर रीच हो जाएगा तो क्या होगा, सोडियम चैनल बंद हो जाएंगे. अब सेम टाइम पे ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल एंड एक्शन पोटेंशियल सून टर्मिनेट. टर्मिनेट कैसे होगा, that will be terminated through the process of depolarization. ठीक है, ये डीपोलराइजेशन के थ्रू ये प्रोसेस, वो क्या होगा, ये प्रोसेस डीपोलराइजेशन से क्या होगा, ये प्रोसेस आपका, इसमें अगेन एक्शन को ओपन होंगे पोटेशियम चैनल, जिससे आपका प्रोसेस ऑफ डीपोलराइजेशन फिर स्टार्ट हो जाएगा, यानी रिपोलराइजेशन सॉरी स्टार्ट हो जाएगा. डीपोलराइजेशन विल बी एंडेड. सो एक और अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल आर नथिंग प्रिंसिपल. सिंपली इसको आप इस तरह समझें कि इफ द थ्रेशोल्ड रीचेस, अगर थ्रेशोल्ड रीच होगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, अगर थ्रेशोल्ड रीच नहीं होगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा. दैट इज सिंपली ऑल आर नथिंग प्रिंसिपल. Once an action potential has been elicited, यानी threshold reach होगा at any point on the membrane of a normal fiber, the depolarization process start हो जाएगा and travel over the entire membrane if condition are right. Condition right कब होगी, मतलब threshold हुआ, हमें चाहिए action potential तो, but it does not travel at all if condition are not right. This principle is called all or nothing principle. यानी एक्शन पोटेंशियल होगा स्प्रेड होगा, नहीं होगा तो स्प्रेड नहीं होगा. ठीक है, दिस इज नोन एज ऑल और नथिंग प्रिंसिपल. सिंपली नाउ इस डायग्राम को आप थोड़ा सा देखें और इस पे आप थोड़ी देर इस डायग्राम को सोचें. रिकॉल योर मेमोरी. यहाँ लेफ्ट पे देखें, इस डायग्राम को देखिए, दोनों एक्शन पोटेंशियल के डायग्राम है. यहाँ देखें आप और इसको भी देखें. ये तो दिस राइट वन इज, अब दोनों में कोई डिफरेंस आपको अगर नजर आ रहा है उसको सोचें, देन आई विल एक्सप्लेन कि व्हाट इज दैट. सिंपली डायग्राम को देखिए. ये राइट की तरफ डायग्राम इज जस्ट व्हाट सेम के जो पहले बता चुके हैं, मेन डायग्राम जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्लाइड थी हमारी, दिस इज लाइक सेम. लेकिन यहाँ पे कुछ फर्क आ रहा है. देखिए ये फर्क हमने समझना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन कार्डियोलॉजी. आगे जब व्हेन यू स्टार्ट योर हार्ट चैप्टर, इसका बड़ा रोल है इसके अंदर. ठीक है, नाउ अब अगर आपने देख लिया डिफरेंस, देखें कि क्या है डिफरेंस. आपको सिंपली ओवरशूट के अंदर नजर आएगा. यहाँ मेम्ब्रेन माइनस से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, सेम इज इन राइट वर्ड डायग्राम, लेकिन यहाँ से डायरेक्टली ऊपर से नीचे आ रही है. हियर बेसिकली what is happening in case of that लेफ्ट वर्ड डायग्राम के, ये जो वापसी का सफर है इस एक्शन पोटेंशियल का, दैट इज नोन एज
रिपोलराइजेशन, यहाँ पे रिपोलराइजेशन थोड़ी देर के लिए आप अगर देखें डिले हो रही, एक्चुअल रिपोलराइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही। ये जो एक फेज आ रहा है यहाँ डायग्राम में दिखा रहा है, दैट इज नोन एज प्लेच्यू। Some pronounce this as plateau, कुछ इसको कहते हैं plateau, and this is frequently asked in viva कि what is that, what is plateau, what is plateau। तो इस पर आते हैं, डायग्राम से समझे तो ज्यादा बेहतर है, आगे आपको बात नजर आएगी। अब आई एम गिविंग द एक्सप्लेनेशन। यहाँ दोनों एक्शन पोटेंशियल है, तो इस लेवल पे जहां ये कर्सर आ रहा है हमारा क्या होना चाहिए कि डिपोलराइजेशन को यहाँ पर एंड होना चाहिए, यानी जो यहाँ हो रहा है डिपोलराइजेशन एंड हो गई, सोडियम चैनल तमाम बंद हो गए। व्हेन सोडियम चैनल क्लोजेस, पोटेशियम चैनल ओपन, मेम्ब्रेन का एक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली नीचे आ रहा है रिपोलर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम चैनल तो यहाँ बंद हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है कि पोटेशियम चैनल अगर खुलते तो डायरेक्ट ये इस तरह ग्राफ नीचे आता, लेकिन नीचे नहीं आ रहा, थोड़ा सा इसी पॉजिटिविटी को मेंटेन कर रहा है यहाँ पे। वाई, इसका मतलब है यहाँ कुछ और चेंज हुई है। यहाँ क्या हुआ बेसिकली, व्हाट हैपन इन दैट, नीचे लिखा होगा आप पढ़ेंगे, कार्डियक मसल का बेसिकली एक्शन पोटेंशियल है। ये वाला हमारे नर्व या स्केलेटल मसल का है एक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन जब एंड हो रही है, सोडियम चैनल क्लोज हो रहे हैं, यहाँ पे पोटाशियम आयन को बाहर आना है, लेकिन उसी टाइम एक और चैनल खुल रहा है जो कि एक और पॉजिटिव आयन को सेल के अंदर लेके जा रहा है, जिसकी वजह से पॉजिटिविटी मेंटेन हो रही थोड़ी देर के लिए। वी कैन से दिस कि दिस इज मेंटेन्ड पॉजिटिविटी, दिस इज आल्सो नोन एज कि दिस इज सस्टेन्ड डिपोलराइजेशन। ये जो डिपोलराइजेशन यहाँ एंड हो रही थी, ये थोड़ी देर सस्टेन्ड हुई। किस वजह से कि यहाँ पे एक दूसरे चैनल ओपन हुए। वो चैनल कौन से थे, दैट चैनल आर बेसिकली द कैल्शियम चैनल। ठीक है, तो आप याद करें प्लेच्यू क्यों हो रहा है कि एक स्पेशल और चैनल है जिनके नाम है कैल्शियम चैनल, वो यहाँ पे खुल जाते हैं, कैल्शियम को सेल के अंदर लेके जाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस को सेल के अंदर लेके जाते हैं। कब तक, थोड़ी देर के लिए, ताकि ये डिपोलराइजेशन यहाँ तक रहे। फिर यहाँ से वो कैल्शियम के चैनल जब बंद हो जाते हैं तो पोटाशियम के चैनल मजीद खुलते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, रिपोलराइजेशन हो जाती है। तो ये फर्क है, प्लेच्यू क्यों हुआ, नया इवेंट हुआ एक्शन पोटेंशियल में, यहाँ पर नहीं है। on right diagram, in left diagram there is plateau, so it means that is due to some reason. That reason is the opening of the calcium channel, and calcium move inside the that कंट्रेक्टाइल या आप कह लें कि एक्साइटेबल टिश्यू, कार्डियक टिश्यू। ठीक है, तो कार्डियक टिश्यू के अंदर भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। वो बेसिकली हमने थर्ड अप टू नाउ वी हैव डिस्कस के टू एक्साइटेबल टिश्यू, स्केलेटल मसल और नर्व है मेनली। यहाँ पे आप कह सकते हैं, अगर आप देखें लिखा है परकेंजी फाइबर ऑफ हार्ट, परकेंजी फाइबर कहलाता है कि हार्ट का नर्वस सिस्टम है उस टाइप का। ठीक है, तो हार्ट इज आल्सो ए मसल, तो उसको भी एक्साइटेबल टिश्यू की लिस्ट में आपका कार्डियक मसल भी आता है कि उसको भी एक्साइट करना पड़ता है। एंड इन दैट एक्शन पोटेंशियल द एक्स्ट्रा फेज इन दैट इज नोन एज प्लेच्यू। ठीक, तो यहाँ अगर हम देखेंगे डिपोलराइजेशन, प्लेच्यू, रिपोलराइजेशन, अगेन रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल। हियर इन केस ऑफ स्केलेटल मसल या नर्व, रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल, डिपोलराइजेशन, repolarization, again resting, no plateau here. On the left there is plateau. Now आगे आएगा कि plateau क्या है रिटर्न में। Plateau is called as कि plateau is sustained depolarization in some action potential. This type of action potential occur in heart muscle fiber where the plateau lasts for as long as 0.2 to 0.3 seconds and cause contraction of heart muscle to last for the same long period. Importantly, इसका फायदा क्या होता है कि remember कि heart is the tissue, yes, important organ of human body that is continuously work, क्या कर रहा है, continuously work कर रहा है।
दिन हो रात हो, यू आर स्लीपिंग, यू आर टॉकिंग, यू आर वॉकिंग, आपकी जो भी एक्टिविटी है, डे एंड नाइट we rest, our brain rest, even our skeletal muscle rest, but heart cannot rest. Heart is active every time. So heart जब हर टाइम एक्टिव है तो उसको रेस्ट की जरूरत पड़ती है. Some cardiologist, even some physiologists, they say कि heart take rest during that plateau phase. ये जो प्लेच्यू फेज है इसी के दौरान हार्ट क्या होता है, रेस्ट करता है. तो इम्पोर्टेंट ऑफ दिस प्लेच्यू फेजेस कि ये थोड़ी लंबा चलता है डिपोलराइजेशन, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोलॉन्गर टाइम, ताकि ब्लड पंप करे ह्यूमन बॉडी में. ठीक, लास्ट फॉर द सेम लॉन्ग पीरियड लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट. सो वोल्टेज एक्टिवेटर लिखा हुआ है कैल्शियम चैनल, एल टाइप कैल्शियम चैनल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्लेच्यू. पहले पिछले स्लाइड में आपको बता चुके हैं कि कैल्शियम चैनल की वजह से प्लेच्यू होगा, which are slow to open and therefore are called slow channel are and are cause of the plateau. So if in BCQ come plateau, why plateau occur? Due to calcium channel. तो ये आपके जहन में होना चाहिए, importantly that this is also discussed in your heart chapter. ठीक. Now important 2-3 definition in this के refractive period. रिफ्रैक्टरी पीरियड पहले हम पढ़ते हैं क्या है. The period during which a second action potential cannot be elicited even with a strong stimulus is called absolute refractive period. This period for large myelinated nerve fiber is about 2500 seconds. So if there is any question in the end, we will do these inshallah. So now listen carefully everyone. Absolute refractive period, the duration is given in parts of a second. ये होता है 1000 part of a second. कास क्या लिखा हुआ, all the sodium channels are already open. ठीक है, तमाम कैल्शियम सोडियम चैनल ऑलरेडी. इसको समझा. Again we will take the help of the diagram. ये देखें, समझे इसको कि डिपोलराइजेशन हो रहा है, कुछ स्टिमुलस आ रहा है, डिपोलराइज मेम्ब्रेन हो रही, फिर रिपोलराइज हो रही. तो डिपोलराइजेशन के दौरान सपोज करें हम चाहते हैं कि इस स्टेज पे दोबारा एक्टिवेट कर दें स्केलेटल मसल को, तो ये नहीं होगा एक्टिवेट. क्यों नहीं होगा? कि ऑलरेडी सोडियम चैनल ओपन है, मजीद ओपन हो नहीं सकते. एक दरवाजा खुला है, कोई कहे कि उस दरवाजे को आप खोल दें, वो तो पहले ही खुला हो. तो इसमें जब तक थोड़ा सा बंद होना शुरू होगा उसको मजीद पूरा खोल सकते हैं. ऑलरेडी सोडियम चैनल खुले हैं तो मजीद खुल नहीं सकते. दैट इज नोन एज के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड. फिर सुने, द पीरियड ड्यूरिंग व्हिच अ सेकंड एक्शन पोटेंशियल कैन नॉट बी elicited even with a strong stimulus is called the absolute refractive period. This period for large myelinated nerve fiber is about 1/2500 second. All the sodium channels are already open. This is the reason कि तमाम सोडियम चैनल ओपन, तो मजीद ओपन नहीं होता. थोड़ा सा टाइम हमारे पास स्टार्ट है, फिर हमने क्वेश्चन भी करने. तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या है कि जब रिपोलराइजेशन स्टार्ट होती है तो सोडियम चैनल बंद होते हैं, पोटेशियम चैनल क्लोज होते हैं. तो उस टाइम पोटेशियम चैनल सोडियम बंद होते हैं, पोटेशियम ओपन होना शुरू होते हैं. तो उस वक्त इफ वी गिव स्टिमुलस तो मसल को, नर्व को कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है. तो दैट इज नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड. The period during which a second action potential can be elicited with a strong stimulus is called relative refractive period. ये देखें, थ्रेशोल्ड है, हम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, लिखा हुआ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, दैट इज लेबल्ड एज ग्रीन. ग्रीन पे देखें ये वाला. इस ड्यूरेशन में हम, क्योंकि सोडियम चैनल यहाँ तकरीबन क्लोज हो जाते हैं, पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं, तो सोडियम चैनल की क्लोजर यहाँ जस्ट स्टार्ट होती है ऊपर से. तो जब यहाँ तक हम इस पीरियड में दूसरा स्टिमुलस देंगे तो नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा. लेकिन एट दैट लेवल कुछ सोडियम क्लोज हो जाएंगे, तो यहाँ पर अगर हम एक्शन पोटेंशियल के लिए स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस देंगे तो नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकता है इन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड. नो अदर एक्शन पोटेंशियल इन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड.
तो इम्पोर्टेंटली दिस वी हैव डिस्कस कि सल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो थ्रू द सराउंडिंग एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड आउटसाइड द मायलिन शीथ एज वेल एज थ्रू द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन फ्रॉम नोड टू नोड। ये इंपॉर्टेंट है लफ्ज नोड टू नोड, exciting successive node one after the other. Thus the nerve impulse jumps along the fiber is called saltatory conduction. This definition you can see. तो इसमें देखें कि एक नोड से दूसरे नोड तक जब एक्शन पोटेंशियल जंप करता है, क्यों जंप करता है कि सोडियम आयन इस नोड के थ्रू अंदर जाएंगे इस नर्व फाइबर के मेम्ब्रेन में, यहाँ पर नेगेटिविटी को चेंज करेंगे, पॉजिटिविटी में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे, यहाँ से फिर एक्शन पोटेंशियल जंप करेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ भी स्पेस है, हियर आल्सो सोडियम आयन कैन गो इनसाइड. So in that jumping manner, see here from node to node in upper arrow, this is known as movement of the action potential from node to node, known as saltatory conduction. ये पिछले लेक्चर में भी था, this is just its repetition. ठीक. अब इम्पोर्टेंटली कि न्यूरॉन के साथ नर्व फाइबर होता है, न्यूरॉन का मैसेज नर्व में ट्रेवल करता है, उसको कहते हैं इट्स कंडक्शन. तो velocity of action potential conduction in nerve fiber varies from low value of 0.25 meter per second in small unmyelinated fiber to as great as 100 meter per second in large myelinated fiber. तो इसका मकसद है कि जो स्मॉल अनमाइलिनेटेड नर्व्स होंगी उनमें जो कंडक्शन होगी, एक्शन पोटेंशियल की स्पीड होगी जाने की वो कम होगी, माइलिनेटेड में ज्यादा होगी और लार्ज फाइबर में ज्यादा होगी. सिंपल इट्स है. नाउ कुछ क्लिनिकल पॉइंट्स रिगार्डिंग दैट, वो क्या है, लोकल एनेस्थेटिक का लिखा है, इसको सिंपली समझिए आप कि अगर कोई प्रोसीजर इंसिजन देना है स्किन पर हमने तो पता होगा वहां हम क्या अप्लाई करते हैं, डॉक्टर अप्लाई करता है लोकल एनेस्थेटिक. उस लोकल एनेस्थेटिक से क्या होता है कि वो जगह सुन्न हो जाती है, हम कहते हैं वहां पे अगर कोई पेन आए, डॉक्टर कट लगाए, वो हमें फील नहीं होता. फील क्यों नहीं होता कि वो एनेस्थेसाइज्ड, वहां से सेंसेशन नहीं जाती. वजह क्या है उसकी कि वो ये लोकल एनेस्थेटिक इसी हमारे चैनल से रिलेटेड है कि उस एरिया के सोडियम चैनल क्लोज हो जाते हैं, जिस वजह से वहां पेन की सेंसेशन स्प्रेड नहीं होती. तो ये इनका रोल है. लिखा हुआ मोस्ट ऑफ these substances are act directly on the activation gate of sodium channel, making it much more difficult for these gates to open, thereby reducing membrane excitability. When excitability has been reduced so low, so nerve impulses fail to pass along the anesthetized nerve. क्लिनिकल लोकल एनेस्थेटिक की एग्जांपल प्रोकेन, टेट्राकेन, ये इनका मैकेनिज्म है कि सोडियम चैनल को क्लोज करते हैं. इंपॉर्टेंटली लिखा हुआ है अदर थिंग रिलेटेड क्लिनिकल इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ सोडियम चैनल इन हाइपोकैल्सीमिया. लिखा होगा पोटेशियम जब कम होता है कैल्शियम जब कम होता है हाइपोकैल्सीमिया, उसमें टेटेनिक कॉन्ट्रैक्शन होती है. मैकेनिज्म इज दैट इन फ्रंट ऑफ यू. When there is a deficit of calcium ion, the sodium channel become activated open by a small increase of the membrane potential from its normal very negative level. Therefore the nerve fiber become highly excitable. Simple आप समझे इसको, इस पेज को मैं सिंपल एक वर्ड में समझाऊं, एक जुमले में कि when calcium level decreases, कैल्शियम लेवल कम होता है तो सोडियम चैनल की ओपनिंग बहुत जल्दी हो जाती है, जिससे क्या होता है उन जल्दी होने की वजह से वो एक्साइटेबिलिटी जल्दी होती है, एक्शन पोटेंशियल जल्दी होता है, चीज जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मसल जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होती है. दैट कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज टेटनी या टेटनस. ठीक है, या पढ़ लेना फिर. सो वी एंड्स आवर लेक्चर हियर. सो एनी क्वेश्चन? हमारे पास 3 मिनट. एक्सक्यूज मी सर. जी सर, व्हाट इज लोकल पोटेंशियल एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्शन पोटेंशियल? लोकल पोटेंशियल इज रेस्टिंग पोटेंशियल है. किसी एक सेल की हम बात करें, एक एरिया की बात करें, वहां का पोटेंशियल जो है वो लोकल पोटेंशियल है. दैट मे बी रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. और वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब थ्रेशोल्ड को रीच हो जाएगा किसी स्टिमुलस की वजह से, तो वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा. दिस इज सेम एज के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, लेकिन लोकली किसी एक टिश्यू की बात होगी, वहां लफ्ज ये लिखा होगा.
Sir, can you explain the saltatory conduction? साल्टेटरी कंडक्शन क्या है बेटा कि ये देखें कि नोड ऑफ रेनवियर प्रेजेंट होते हैं, गैप प्रेजेंट होते हैं, एक नर्व को आप समझें कि एक तार है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की तार है, इसी तरह की नर्व्स हमारी बॉडी के अंदर है। वो नर्व मैसेज एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। उनसे क्या होता है कि उन पर माइलिन शीट है ऊपर से कवरिंग, उस माइलिन शीट के अंदर गैप्स हैं, ये देखें, उन गैप्स को कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। तो एक्शन पोटेंशियल क्योंकि हम कहते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रेवल करता है, तो अब नर्व की मेम्ब्रेन के ऊपर तो माइलिन शीट है, उसके अंदर गैप्स नोड ऑफ रेनवियर हैं, उस एक गैप से दूसरे गैप तक एक्शन पोटेंशियल जंप करता है। दैट जंपिंग मैनर ट्रेवलिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज नोन एज साल्टेटरी कंडक्शन। एनी अदर क्वेश्चन? Sir, can you open Nernst potential slide? This is action potential slide G. Any question in that? Sir, Nernst potential. Nernst potential. Okay. Nernst potential, the potential at which. Sir, I have a question in that 70 millivolt. यहाँ नीचे लिखा हुआ है ना जो. This is V for means these are two forces. ये दो forces की अलग अलग बात कर रहा है। एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है E, एक जो है उसका वोल्टेज यानी that is concentration gradient, ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फोर्सेस और उसके इलेक्ट्रिकल फोर्सेस उनके यूनिट्स दिए हैं। तो इसको अलग से आप ऐसे समझ सकते हैं कि पोटेशियम का ये जो -94 है दैट इज फाइनल नर्नेस्ट पोटेंशियल, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल अलग होता है। हाँ? Can you stop talking? Excuse me, sir. The time is Nernst simply last minute we have। तो नर्नेस्ट पोटेंशियल को इस तरह समझें कि दो फोर्सेस हैं, उन्हीं के यूनिट्स हैं। वन इज electrical gradient, other is the chemical gradient. Chemical gradient, a level at which chemical gradient is opposed by electrical gradient, that is known as the Nernst potential। तो ये दोनों ग्रेडियंट उनकी वैल्यू लिखी हुई है, एक केमिकल ग्रेडियंट की वैल्यू है, एक Vm जो है इनकी